Hello students, how are you? Welcome to my lecture on reproduction in organisms part 2. I am Neetu Gupta. Today we will discuss about types of asexual reproduction. Students preparing for competitive exams like NEET and AIMS can join me and subscribe my channel. So let's start it. We have already discussed about asexual reproduction in last video. Let's take a look. I told you that in asexual reproduction only one parent is involved, so this is called uniparental. There is no formation and fusion of gametes in asexual reproduction. Only mitotic division occurs in asexual reproduction. Offsprings are morphologically and genetically similar to their parents, so they are known as clones. Some examples of asexual reproduction uh, are amoeba, euglena, potato, hydra, bryophyllum, etc. In this part, we will continue with methods of asexual reproduction. We can also say this types of asexual reproduction or modes of asexual reproduction. First is fission. So we will take a look on fission. Fission means splitting, or you can say division of parent body in daughter cells. So according to the daughter cells number after division, fission can be divided into two parts, that is binary fission and multiple fission. In binary fission, one parent cell is going to divide into two daughter cells. But in multiple fission, one parent cell will be divided in many daughter cells. If we talk about amoeba, first of all, it will enlarge its nucleus and then it will divide into two daughter cells. But in case of multiple fission in Plasmodium, it is parent cell and then nuclear division takes place. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस बन चुके हैं. These nucleus will you can say surrounded by cytoplasm and a membrane, and these can come outside by rupturing of the parent cell membrane. We can see the definition from here. Fission is division of parent body into two or more daughter individuals, and they should be identical to the parents. Next is binary fission. मैंने आपको भी बताया binary means two होता है. Division of parent into two small equal size daughter individuals is called binary fission. इसके कुछ examples है like amoeba, paramecium, bacteria. Multiple fission can be seen in Plasmodium. Plasmodium is a protozoan which cause malaria in humans. Okay. Next is spore formation. Spores are very minute, small, thin-walled propagule which generate to produce new individual occur in monerans, fungus, और you can say protozoans, algae. आप ये देख सकते हैं कि ये Chlamydomonas है. And this is example of algae. This is example of fungus, fungi, और इसमें this is Penicillium, and this is Hydra coelenterate, and this is Gemule. Okay. So it is found in poriferans. So we can see that in Chlamydomonas, zoospores are responsible for the reproduction, or you can say for the formation of new organism. Zoospores आप देख सकते हैं इसमें ये फ्लैजिला है. फ्लैजिला की वजह से ये मोटाइल होता है और it can swim in aquatic environment for dispersal. But in Penicillium, पेनिसिलियम आप देख सकते हैं ये स्मॉल स्मॉल से स्ट्रक्चर्स हैं. these are called conidia and these are non motile and they disperse by wind. नेक्स्ट बात करेंगे बडिंग की. बडिंग आप कह सकते हैं कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ हो जाती है and that extra outgrowth will be separate and that give rise to new organism, that is called budding. So इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक्सोजिनस बडिंग में आपका बडिंग बाहर की साइड होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पेरेंट बॉडी. इट कैन सीन इन हाइड्रा एंड ईस्ट. जैसे कि आप
सबसे पहले अगर हम ईस्ट की बात करें तो ये डायग्राम दिया हुआ है इसमें, ये पेरेंट बॉडी ऑफ मदर सेल है, इसमें धीरे धीरे एक बर्ड का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है। आफ्टर दैट कई सारी बर्ड्स डॉटर बर्ड्स बन जाती है यहाँ पर। और अगर इन बर्ड्स को डिवाइड कर सेपरेट कर दिया जाए, दे विल गिव अ राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। सो नेक्स्ट इज, अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा इज अ सीलेंट्रेट। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये टेंटिकल्स होते हैं, और ये आपका स्मॉल आउटर ग्रोथ यहाँ पर होनी शुरू हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड बड। अगर ये यहाँ से डिटैच हो जाए, सो दिस विल डेवलप इन न्यू ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज इंडोजिनस बडिंग। इंडोजिनस बडिंग आपकी आप कह सकते हैं कि इट अकर्स इन इनसाइड द बॉडी ऑफ द पैरेट। तो इसका एग्जांपल है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है और इसके अंदर ये जेम्यूल के थ्रू होता है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जेम्यूल, यू कैन सी दैट। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। आप कह सकते हैं कि हीलिंग ऑफ द लॉस्ट पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। जैसे कि ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया आपका आप देख सकते हैं, प्लेनेरिया इज एनिमल ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस, और अगर हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, that parts will be grow and they will develop into new organism. So it's a process in which formation of whole body of an organism from a small fragment or the replacement of the lost part. Next method is fragmentation. It can be seen in filamentous algae. For example, Spirogyra. If we do fragments of Spirogyra, it will grows and it will develop in new organisms. Fragmentation can also be seen in echinoderms, sponges, and sea anemones. Next is plasmotomy. It is seen in multinucleated protozoans. Okay, and examples are Opalina, Pleomyxa. नॉर्मली अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, तो उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, बट इन केस ऑफ प्लाज्मोटोमी फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस एंड आफ्टर दैट कैरियोकाइनेसिस. Next is vegetative propagation. This is the most important method of asexual reproduction in plants. Okay, so in this formation of new plants with the help of vegetative parts of plant, इसमें नए plants vegetative unit से बनते हैं, और vegetative units कौन कौन सी हैं? bulb, tubers, buds and rhizome, etc. These are also called vegetative propagules. इन structures को हम और क्या बोलते हैं? Vegetative propagules बोलते हैं. Propagules is new word for us. So it can propagate or new organisms can be made. It is a type of asexual reproduction. तो इसमें सिर्फ एक parent ही involve होगा, and that will form exact copy. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बहुत ही लार्ज नंबर पर क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में, और ये बहुत ही जल्दी मैच्योर होते हैं. अगर किसी पेरेंट में अच्छा कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग में जरूर जाएगा. सो इट प्रिजर्व्स प्योरिटी, रेजिस्टेंस एंड गुड क्वालिटी ऑफ द रेस. Now we will see methods of vegetative propagation in plants. There are 2 methods, natural method and artificial method. So first of all we will see natural method. इसमें हम स्टेम, रूट्स एंड लीव्स के मॉडिफिकेशंस को देखते हैं. इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस है लाइक राइजोम्स, ट्यूबर, बल्ब. सो राइजोम, we can see rhizome in ginger and turmeric, and it store food, and as we can see in that diagram, ये राइजोम है. ओके, नेक्स्ट दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, दैट इज कॉल्ड ट्यूबर इन पोटैटो. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आई लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड बर्ड्स आर प्रेजेंट इनसाइड इट, और अगर हम इसे सॉइल में ग्रो कराते हैं तो दैट विल डेवलप इन न्यू प्लांट. उसी तरीके से बल्ब होता है, बल्ब इन अनियन एंड गार्लिक. अगर हम इसे सो कराते हैं इन सॉइल, दैट विल डेवलप इन न्यू प्लांट.
कुछ सब एरियल एंड क्रीपिंग स्टेम्स होते हैं, रनर्स, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर्स. We can understand these terms by this diagram. सबसे पहले बात करते हैं रनर की. रनर एक तरीके से हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है और हार्ड स्ट्रक्चर होता है काफी, और इसमें मल्टीपल नोड्स होती हैं. दिस इज फाउंड इन ऑक्जेलिस. ओके, सो नेक्स्ट इज स्टोलन. स्टोलन में आप देख रहे हो कि ये प्लांट है, डॉटर प्लांट है, या फिर ये पेरेंट प्लांट है जिसमें से एक ब्रांच निकल रही है लाइक अ लूप, और दैट विल डेवलप इनटू न्यू डॉटर प्लांट. नेक्स्ट आप देख सकते हैं सकर. सकर के अंदर जो भी ब्रांच होती है वो अंडरग्राउंड ही रन करती है, और दैट विल डेवलप इनटू न्यू प्लांट. ऑफसेट. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑफसेट. ऑफसेट इज एक्वेटिक रनर. इसमें भी हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है, बट ये वाटर में ही पाया जाता है, और इसमें दिस इज वेरी सॉफ्ट. और example of offset is Ecornia, that is called terror of Bengal. This is the exotic plant, और इंडिया में इसे इसलिए लाया गया था और ड्यू टू ऑर्नामेंटल वैल्यूज. बट जब इसे ग्रो कराया गया तो देखा गया कि इसने थोड़े ही टाइम में पूरे के पूरे वाटर सरफेस को घेर लिया था, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ही रैपिड थी. तो इसीलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है. Example of stolon is Fragaria, and example of sucker is Chrysanthemum or mint. This is the descriptive diagram of sucker. ये stem और you can say branches of क्राइसेंथेमम है. और अगर हम देखें तो ये एक ब्रांच जो हार्ड है, काफी हार्ड है, ये अंडरग्राउंडली ही मूव करती है, और दैट विल डेवलप इन न्यू प्लांट. नाउ रूट्स के मॉडिफिकेशन में टैप रूट एंड ट्यूबर्स आता है. जैसे कि टैप रूट का एग्जांपल गुआवा है, एंड ट्यूबर्स का एग्जांपल स्वीट पोटैटो है. इसका मेन फंक्शन इन मॉडिफिकेशंस का मेन फंक्शन है टू स्टोर द फूड. लीव्स में लाइक ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया. अगर हम ब्रायोफिलम की लीफ देखें, देखिए यहाँ पर ये जो लीफ है दिस इज ऑफ ब्रायोफिलम. इसमें डिफरेंट नॉचेस होते हैं, और नॉचेस पे एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं. अगर हम इन एडवेंटिशियस बर्ड्स को कट करके सॉइल में ग्रो कराते हैं तो दैट विल डेवलप इन न्यू प्लांट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इस रिप्रोडक्शन में हम एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं बाय मैन-मेड मेथड्स. और इस मेथड को यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करा सके. द थ्री मेन मेथड्स आर, यू कैन सी, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. तो पहले कटिंग की बात करते हैं. अगर हम किसी भी प्लांट के ऐसे पार्ट को कट करते हैं जिसमें बड है, और उसे सॉइल में बरी करते हैं या फिर सॉइल में ग्रो कराते हैं, तो दैट विल डेवलप इन न्यू प्लांट. जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, अगर हम स्टेम कटिंग को सॉइल में उगाते हैं तो ये हमें हमारे डिफरेंट प्लांट्स है, शुगर केन, रोज एंड सिट्रस. लीफ कटिंग के थ्रू हम ऐसे ब्रायोफिलम को उगा सकते हैं, और रूट कटिंग के थ्रू हम ब्लैकबेरी एंड रस्पबेरी को. लेयरिंग, सेकेंड इज लेयरिंग. अगर लेयरिंग की बात करें तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स द पुलिंग ऑफ ब्रांच ऑफ अ प्लांट एंड बरिंग इट इन सॉइल. इसका मतलब हम इसकी किसी भी ब्रांच को खींच कर अगर सॉइल में दबा देते हैं तो दैट विल डेवलप इन न्यू प्लांट. ओके, सो दिस इज ऑफ टू टाइप. अगर हम ग्राउंड के अंदर ये चीज करते हैं तो उसे सॉइल लेयरिंग कहते हैं. इसके एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन एंड ग्रेप वाइन है. और एयर लेयरिंग में लीची एंड पोमीग्रेनेट. नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग. इसके अंदर हम किसी भी एक सुपीरियर, जैसे कि हम इसमें दो प्लांट्स लेंगे और इसमें इनकी कैरेक्टर्स को कंबाइन कर देंगे. ऐसे मेथड से हम मैंगो, एप्पल और पियर को ग्रो करा सकते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये एयर लेयरिंग है. एयर लेयरिंग ये हमारे दो तरीके की होती है लेयरिंग. जैसे सिंपल लेयरिंग को हम सॉइल लेयरिंग कहते हैं. इसमें देखिए ब्रांच को
बरी कर दिया गया है इन सॉइल, और इससे फिर यहाँ पर न्यू प्लांट अराइज हो गया है। अगर हम एयर लेयरिंग की बात करें तो इसके अंदर ऐसे ऐसा पार्ट जो डेड हो जाता है उसके आउटर पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, और जो वेसल्स होती हैं उसको रहने देते हैं, और उसे किसी कपड़े से टाइटली बांध देते हैं, और ताकि वो इन्फेक्शियस जो जितने भी जर्म्स या वायरस या बैक्टीरिया है उसके कांटेक्ट में ना आए। और फिर इसके बाद इसे मॉस या फिर इसमें मॉस या फ्यूनेरिया को डाल देते हैं ताकि वहाँ का मॉइस्चर मेंटेन रहे। नेक्स्ट ये डायग्राम है ग्राफ्टिंग का, देखिए ये एक रूटेड प्लांट को स्टॉक बोलते हैं। जिस भी प्लांट का हमने रूट लिया होता है उसे स्टॉक बोलते हैं, और ऐसा प्लांट जिसका हमने शूट सिस्टम लिया होता है या फिर शूट ऑफ सुपीरियर क्वालिटी लिया होता है उसे स्कियोन बोलते हैं। अब इसके बाद हम इसे टाइटली किसी भी कपड़े से बांध सकते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। लास्ट इज माइक्रो प्रोपेगेशन, इट ऑल्सो कम्स इन आर्टिफिशियल मेथड। ये एक तरीके का टिश्यू कल्चर मेथड है जिसके अंदर किसी भी प्लांट के सेल या टिश्यू को किसी भी ग्रोथ मीडियम में ग्रो कराया जाता है, और फिर अनडिफरेंशिएटेड मास मिलता है जिसे कैलस कहते हैं। ओके, तो इट विल लेटर डिफरेंशिएट इनटू प्लांटलेट्स। छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं। इन प्लांटलेट्स को हम अलग कर सकते हैं और डिफरेंट पोर्ट्स में हम उसे उगा सकते हैं। जैसे कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट का नेम आपने सुना होगा, ऑर्किड, उसे भी माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू ही उगाया जाता है, और ये इस प्रोसेस से हमें वायरस फ्री एंड डिजीज फ्री प्लांट्स मिलते हैं। सो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। इसमें सबसे पहले स्टेज 1 में हम एक ऐसे प्लांट का सिलेक्शन करते हैं जो कि सुपीरियर क्वालिटीज का है। उसके बाद हम इसमें शूट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फिर रूट स्टिमुलेटिंग हार्मोन डालते हैं, जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन होता है और साथ में रूट का डेवलपमेंट भी होता है। फिर हम इसे नए पॉट में ट्रांसफर कर सकते हैं इस प्लांट को, या फिर डायरेक्ट इन सॉइल। नेक्स्ट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये सबसे अच्छा मेथड है सीडलेस प्लांट्स को ग्रो कराने का, जैसे कि ग्रेप्स, शुगर केन, और इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, इस वजह से इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स वी कैन प्रोड्यूस। ओके, जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में होते हैं वही कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में भी जाते हैं, चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो। ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है फॉर बैड कैरेक्टर्स। और जो माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू जो हम प्लांट्स उगाते हैं उसमें वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, डिजीज फ्री होते हैं, और एंड वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? अगर हम दो प्लांट्स के जीन को कंबाइन कर दें तो दैट विल फॉर्म कंबाइंड, और यू कैन से कंपोजिट प्लांट। ओके, सो उसमें दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर्स होंगे। डीमेरिट्स की बात करें तो फर्स्ट इज, अगर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है तो उसके साथ साथ कोई जरूरी नहीं है कि प्लांट अपनी अडेप्टेबिलिटी भी चेंज कर ले। ओके, और अगर किसी पेरेंट में गुड या बैड कैरेक्टर है तो वो ऑफस्प्रिंग में जाएगा ही, बाद में हम उसे क्योर कर सकते हैं। Okay, students, that's all about the asexual reproduction. We will discuss about sexual reproduction in detail in next video. If you have any doubt in this lecture, then you can ask in comment box, like the video, and for my next lecture's notification, please subscribe my channel and press the bell icon for latest notification. Thank you, students. See you in next lecture. Study well, prepare well, best of luck.